السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفا انصاری اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ملتان تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود میں CCD پولیس نے ایک درندہ صفت شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یہ شخص اسکول اور کالج کی طالبات کو پریشان کرتا تھا اور اس کو ہراساں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ اسی پر بات کریں گے ہم اپنے نمائندے خواجہ سکلین سے۔ جی سکلین، مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا۔ سکلین سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان کے شاہ رکن عالم تھانے کی حدود میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس ملزم پر یہ الزام ہے کہ وہ کالج کی طالبات کو ہراساں کرتا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ قانون کے گرفت میں نہیں آئے گا، لیکن پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے طالبات کی شکایت پر اس ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ خواتین کو پریشان کرتا تھا اور اس نے خواتین کو ہراساں کرنا اپنا معمول بنایا ہوا تھا، اور پولیس نے جب اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی تو اس نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ خواجہ سکلین سے۔ جی سکلین، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شاہ رکن عالم کا یہ علاقہ ہے۔ متعدد متعلقہ تھانے کو جو ہے شکایت بھی موصول ہوئی، لیکن اس کی CCD کی ویڈیوز جو ہے وہ موصول نہیں ہو رہی تھی۔ بچیاں جو ہے اسکول اور کالج جب جاتی تھیں تو ان کو نازیبا حرکات کرتا تھا، چھیڑخانی کرتا تھا، جس کی ویڈیو جو ہے موصول ہوئی، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور ملتان CCD نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اسے جو ہے اریسٹ کرنے کے لیے ناکہ لگایا۔ تو اس نے جیسے ہی پولیس کو دیکھا اور یہ فرار ہونے کی کوشش کی تو خبر دیں گے DPO عرفان علی سمو کی قیادت میں پولیس کا کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ ناسی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن تھانہ بھون کی حدود سے اغوا ہونے والے امجد المانی کو کچے کے علاقے سے بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مغوی امجد المانی کو چند روز قبل اسلحے کے زور پر نواز آباد سے اغوا کیا گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کامیاب آپریشن میں مغوی کو بازیاب کرا لیا۔ DPO عرفان علی سمو کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کچے کے جرائم پیشہ ناسی کے خلاف کارروائیاں ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہریوں کے لیے بزنس کا انقلابی اقدام۔ جدید ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے 52 سروسز گھر بیٹھے فراہم ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور محکموں کو کارکردگی بہتر بنانے اور زیر التواء کیسز فوری نمٹانے کی ہدایات کی گئیں۔ اسی پر دیکھتے ہیں لودھرا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر غضنفر علی کی یہ رپورٹ۔ لودھرا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شہریوں کے لیے بزنس کا انقلابی اقدام۔ شہریوں اور کاروباری طبقے کو جدید ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور لنک سسٹم کے ذریعے سہولیات ان کے دروازے پر فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی زیر صدارت بزنس سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیاقت علی گیلانی اور دیگر افسران شریک تھے۔ ڈاکٹر لبنہ نذیر کا کہنا تھا کہ پورٹل ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے 52 سروسز شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سسٹم کا مقصد کاروباری سرگرمیوں میں تیزی، شفافیت اور آسانی پیدا کرنا ہے۔ اب شہری کاغذی کارروائیوں کے بغیر گھر بیٹھے NOC سمیت دیگر سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غضنفر علی، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز لودھرا۔ دوسری جانب رینالہ خورد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر ایک دلیا پروڈکشن یونٹ پر چھاپا مارا گیا۔ کارروائی رحمان ٹاؤن نزد سہارا سٹی میں کی گئی، جہاں فوڈ سیفٹی ٹیم نے یونٹ میں ناقص صفائی، چوہوں کے فضلات، زنگ آلود برتنوں اور گندی مشینری کا استعمال پایا۔ ان سنگین خلاف ورزیوں پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کا کہنا ہے کہ صحت عامہ کے تحفظ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ خوراک سے متعلق شکایات ہوں تو فوری طور پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1123 پر اطلاع دیں۔ خانپور جنوبی پنجاب میں حالیہ سیلاب اور طوفانی بارشوں کے باعث گندم اور دھان کی فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ فصلوں کی تباہی سے کاشتکار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ حکومت پنجاب تاحال ریلیف فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ متاثرہ زمیندار سرکاری امداد کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ملک وسیم کی اس رپورٹ میں۔ سیلاب اور طوفانی بارشوں سے خانپور جنوبی پنجاب میں گندم اور دھان فصل بری طرح متاثر۔ سیلاب اور طوفانی بارشوں سے خانپور کی ہزاروں ایکڑ فصل متاثر ہوئی یا اسپرے اور کھاد کے نرخ بڑھ جانے سے اور بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلاب اور طوفانی بارشوں سے متاثر زمینداروں کے ساتھ حکومت پنجاب تعاون کرے۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں کافی تباہی ہوئی ہے، وہیں پر خانپور کے کئی علاقے بھی سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، جس سے ہماری دھان کی فصل ہے اور جو ہماری گندم کی فصل ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے
चाहिए कि वो हमें सब्सिडी दे खाद में, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त कर सकें। सैलाब और तूफ़ानी बारिशों की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो शदीद मुतासिर हुई हैं। हुकूमत ने खाद में हमें कोई सब्सिडी नहीं दी हुई, स्प्रे में कोई सब्सिडी नहीं दी हुई। हम हुकूमत से यही अपील करेंगे खाद और स्प्रे में हमें सब्सिडी दें ताकि हम अपनी ज़मीनों को काश्तकारी कर सकें और मुनाफा कमा सकें। सैलाब की वजह तो बारिशों की वजह तो सारी गंदम की फसल तबाह थी चुकी है, धान की फसल तबाह थी चुकी है। लिहाजा मेहरबानी करते हुकूमत जो है ना से रिलीफ देता हो, कोई रिलीफ देवे गरीब आदमी को। गरीब आदमी बहुत परेशान जलील है, लिहाजा मेहरबानी करते कोई रिलीफ दे रहे हैं। धान की फसल भी ख़त्म थी चुकी है, गंदम की फसल भी ख़त्म थी चुकी है। कानपुर तहसील के मज़ाफ़ाती इलाके हालिया सैलाब और तूफ़ानी बारिशों से गंदम और धान की फसल मुतासर होने से गंदम और चावल की बुरान का खदशा है। मुतासरीन हुकूमत वक्त से खाद और स्प्रे के नरखों में कमी की अपील की है। सैलाब और तूफ़ानी बारिशों से मुतासर जमींदार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हालिया सैलाब और तूफ़ानी बारिशों के बायस गंदम और धान की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि किसानों को खाद और स्प्रे में सब्सिडी दी जाए ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी कर सके। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, खानपुर। नाजरीन, जलालपुर पीरवाला में वापडा एहलकारों की नाअहली के बायस बिजली की तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। इन तारों की वजह से स्कूल के बच्चों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर वापडा की जानिब से इन तारों को फौरी तौर पर दुरुस्त न किया गया तो ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला सिटी शहर के अंदर। जो मुख्तलिफ हमारे मोहल्ले हैं, गरीब शाह है और इमाम बारगाह वाली गली है, वहाँ पर लटकती तारें, लटकते मीटर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वापडा एहलकारों की नाअहली की वजह से ये नंगी तारें नज़र आ रही हैं। ये बहुत बड़ा सान्या हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मीटर जो है ये गली के निचली साइड पे लगे हुए हैं, तारें बिल्कुल नंगी हैं इसकी, और किसी भी वक्त यहाँ पर ये कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी तारें जल जाती हैं, कभी मीटर जल जाते हैं। हमारी वापडा वालों से गुजारिश है, अगर इन्हें मीटर को एक तरतीब के साथ लगाया जाए या तारों को कुछ ऊपर किया जाए या मीटर एक तरतीब से लगाया जाए। स्कूल के टाइम यहाँ पर बच्चों के गुजरने का टाइम होता है, कोई ना कोई मसला बन सकता है। पहले भी 1-2 मरतबा मसला बना है। हम गुजारिश करते हैं कि इन्हें एक तरतीब के साथ लगाया जाए और तारों को एक सेटिंग के साथ लगाया जाए ताकि बड़ी आफत से महफूज रह सकें। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि वापडा एहलकारों की नाअहली की वजह से ये मीटर की तारें भी नंगी है, जिसकी वजह से यहाँ से बच्चे गुजरते हैं स्कूल वाले, उनके साथ भी ये सान्या पेश आ सकता है। लिहाजा SDO वापडा जलालपुर से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी सेटिंग कीजिए ताकि कोई बड़ा हादसे से बचा जा सके। जी, खानेवाल शहर के मुख्तलिफ रोड टूट फूट का शिकार हो गए हैं। जसवंत नगर चौक से चौक फारूक आजम रोड, मक्की चौक रोड और महंगी वाली पली वाली रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। इन टूटे फूटे रास्तों से रोजाना हजारों शहरी गुजरते हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसवंत नगर से चौक फारूक आजम रोड पर, जो इंतहाई टूट फूट का शिकार है। ना कि जसवंत नगर रोड, सिर्फ कॉलोनी नंबर 3, कॉलोनी नंबर 1 और फजल कॉलोनी जो है वो वहां तक रोड जो है टूट फूट का शिकार है। और जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि खानेवाल में तमाम सीवरेज खराब हो चुकी है, पानी वो गलियों में आ चुका है और जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से गुजरते हैं रोज की बिना पर, और यहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं। तो मजीद अब उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, आपको किस अजियत का सामना करना पड़ता है? क्या आपने कभी किसी से मुतालबा नहीं किया इस रोड बनवाने का? क्या कहेंगे? देखें, इंतज़ामिया को बार बार वीडियो बना के, अवामी नुमाइंदों को वीडियो बना के सेंड की हैं। मुतलका जो इधर के इंतज़ामिया उनको बार बार ये दिखा चुके हैं। मुकम्मल ये रोड और सीवरेज कॉलोनी नंबर 3 और कॉलोनी नंबर 1 ये मुकम्मल तबाह हो चुका है। खुदा के लिए इंतज़ामिया और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे हमारा मुतालबा है इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपको वोट दे के इंतज़ामिया नुमाइंदों को मुंतखब किया, ये किधर जाए, अवाम किधर जाए? पूरा रोड रेडी वालों ने ये। अच्छा सर बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है कि मैंने लाखों हजारों किलोमीटर की सड़कें दी हैं,
पंजाब में, तो आपको कहीं नजर आती हैं? जी मुझे नज़र आती हैं पेनाफ्लेक्स में। पेनाफ्लेक्स में बड़े बड़े उन्होंने मोटरवे भी दे दिए हैं ज़िला खानेवाल को, और पता नहीं कितने खरब रुपए, कल ही मैं पढ़ रहा था इतने खरब आ गए हैं खानेवाल में, और पता नहीं कहाँ लग रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। ये मेन कब्रिस्तान है, ये रोड है इसका, हज़ारों इधर से मोटरसाइकिल रक्शे गुजरते हैं, सबका नुकसान हो रहा है। मुकम्मल ये खंडर बन चुका है, ये इसका 3 नंबर कॉलोनी और कॉलोनी नंबर 1, ये आप जाके ना इसका सीवरेज का इंतज़ाम देख लें, सारा बैठ चुका है। खुदा के लिए इंतज़ामिया से और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा है इधर भी ध्यान दें। सिर्फ ये मीडिया पे कुछ भी नहीं है, पेनाफ्लेक्स बड़े बड़े लगा के खरबों पे हमने इधर लगा दिए, पता हमें तो नज़र नहीं आ रहा। सारे टूट फूट का शिकार हैं और तमाम कॉलोनियों की सीवरेज पाइपलाइन बंद हो गई और पानी जो है गलियों में आ चुका है, जिसकी वजह से खानेवाल के जो शहरी हैं ज़हनी अज़ियत का शिकार हो चुके हैं। तो जिला इंतजामिया और मरीम नवाज से इन्होंने यही मुतालबा किया है कि इस चीज़ पर फौरी नोटिस लें और ये काम करवाया जाए। जी। भावलपुर समेत दुनिया भर में नाबीना अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बसारत से महरूम अफराद के मसाइल और ज़रूरियात से मुआशरे को आगाह करना है। यौम सफ़ेद छड़ी के मौके पर आगाही वॉक्स और तकरीबात का इनेकाद किया गया। नाबीना अफराद के लिए तालीम, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबात सामने आ गए हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 20 लाख अफराद मुकम्मल तौर पर नाबीना हैं, जबकि 60 लाख अफराद जुज़वी तौर पर बसारत से महरूम हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 22 करोड़ अफराद नाबीनापन के ख़तरे से दो चार हैं। सियालकोट में तैयार की जाने वाली सफ़ेद छड़ियाँ दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन चुकी हैं। नाबीना जज, लेक्चरार, खिलाड़ी और सिफारतकार मुल्क का फ़ख्र हैं। नाबीना शख्सियात ने शहरियों से अपील की है कि सफ़ेद छड़ी का एहतराम करें और नाबीना अफराद को रास्ता दें। मुल्तान के इलाके बस्ती मलो के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मकामी आबादी के रिहायशी खाल में गंदे पानी के मुसलसल जमा रहने पर सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मालिक साजिद खोकर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बस मुल्तान का नवाई इलाका है बस्ती मलूक, जहां मेन गली है यूनियन कौंसिल वाली, वहां पर मौजूद हूं। और यहां पे 2 सरकारी स्कूल भी हैं, एक लड़कियों का है, एक बच्चों का है। और जो सरकारी खाल है उसमें सीवरेज का कोई बेहतर निज़ाम ना होने की वजह से जो शहरी हैं वो सारा पानी उसमें छोड़ रहे हैं। ये सरकारी खाल है और यहाँ के साथ जो करीबी घर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और मच्छर वगैरह होते हैं। ये मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये खाला है जो है ना, ये एक तो गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स है और बॉयज़ है, और जहाँ ये रहायश के नाल साथ साथ जो है ना जो रहायशी हैं वो पानी जो है ना इस खाले में छोड़ रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से अपील है वो भाई इसका पानी का जो है ना कोई हल निकालें और इसका जो है ना कोई हल सोचें। ये बीमारियां पैदा होती हैं और बदबू आती है पानी से, और शहरी बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट से अपील है ये इसका पानी का कोई हल निकाला जाए और इसे ये बीमारियों से बचाया जाए आवाम को। यह आवाम परेशान है, इसका हर रोज़ जो है ना मरीज़ जाते हैं अस्पतालों में और बड़े परेशान हैं ये। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ये कमिश्नर मुल्तान से अपील करते हैं कि कोई सीवरेज का बेहतर निज़ाम बनाया जाए ताकि ये जो गंदा पानी है लोगों के घरों के आगे भी खड़ा ना हो और जो डेंगू मच्छर की वबा है उससे भी निजात मिल सके। जी। दीपालपुर में वफाकी मुहतसिब आला के नुमाइंदे इजहार अहमद ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी मुनाकिद की, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकम्मल तफसीलात जानते हैं शफीक अहमद की इस रिपोर्ट में। दीपालपुर के वाबड़ा ऑफिस में वफाकी मुतसब आला के नुमाइंदे इजहार अहमद की ज़ेर सदारत खुली कचहरी मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ वफाकी महकमों के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों ने बिजली के बिलों में ज्यादती, नादरा से शनाख्ती कार्ड के मसाइल और बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम शामिल न होने जैसी शिकायत पेश की। इजहार अहमद ने तमाम शिकायत को गौर से सुना और मौका पर ही मुतअद्दिद मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। जी, मेरा नाम इजहार अहमद है और आजकल मैं रीजनल हेड साहिवाल हूँ। जितनी भी शिकायत है वो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह मैं आज आया हूँ तो यहीं पर हल कर दी जाए। बहुत कम केसेस होते हैं जो रिलीज़ करते पड़ते हैं जिसमें एजेंसी शायद रिपोर्ट ना दे सके। तो ये हमारा दायरा इख्तियार है कि हमें वैसे तो साहिवाल में हम करते हैं, सारे केसेस सुनते हैं, लेकिन 2 या 3 मरतबा हम फील्ड में भी निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि वफाकी हुकूमत अवाम की शिकायत के अजाले के लिए संजीदा है।
और खुली कचहरियों के दायरे कार को मजीद वसी किया जा रहा है ताकि आवाम को इनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम किया जा सके। खबर देंगे मंचनाबाद के इलाके मंडी सादिकगंज में मजदूरों और आड़तियों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में 2 मजदूरों समेत एक आड़ती जख्मी हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुला मंडी में मजदूर यूनियन ने मजदूरी के रेट मुकर्रर न होने पर मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। मजदूरों ने तमाम दुकानों और ट्रक अड्डों पर काम बंद कर दिया, जिसके बायस मंडी की तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई। इसी दौरान चंद आड़तियों ने काम से इनकार पर मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद हालात कशीदा हो गए और सैकड़ों मजदूरों ने एक आड़ती पर हमला कर दिया। पुलिस और एलीट फोर्स मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पा लिया। ताहम मजदूरों की हड़ताल बदस्तूर जारी है, जबकि मंडी में सैकड़ों मन धान की फसल मौजूद होने के बायस किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। तला बस्ती आसमाबाद में म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर ने पुराना और मुजरे सेहत आटा तकसीम कर दिया गया। एक्सपायर आटा तकसीम करने पर सैलाब मुतासरीन सरापाए एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। मुतासरा बस्ती आसमाबाद में म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर ने पुराना और मुजरे सेहत आटा तकसीम कर दिया। एक्सपायर आटा तकसीम करने पर सलाह मुतासरीन सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि मुतासरा बस्ती में पहले ही वबाई अमराज फूट चुके हैं। इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से एक्सपायर आटा तकसीम कर दिया गया। हमारे पहले ही हालात ठीक नहीं है। इंतज़ामिया हमारे साथ जानवरों वाला सलूक कर रही है। शहरियों का यह भी कहना था कि चनाब नगर में नए आने वाले चीफ ऑफिसर की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। हमारी डीसी चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदर और एसी लालियां से पुरजोर अपील है कि हमें ताज़ा आटा फराहम किया जाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। खबर देंगे रनाला खुर्द में मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा अब्दुल समद अल मारूफ हुजूर साहब के सालाना 3 रोज़ा उसकी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं और इस मुबारक में मुल्क व बैरून मुल्क से हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। दरबार शरीफ को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि ज़ायरीन के क़याम व ताम, कुरान ख़ानी, नात ख़वानी और महफिल मिलाद का वसी इंतज़ाम किया गया। इख्तितामी दुआ सजादा नशीन पीर मिनहाजुल इस्लाम ने करवाई, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम दरबार शरीफ इंतजामिया, मकामी पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से किए गए थे। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज़ के साथ रहिए।